Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's lecture number 5 of Pakistan Studies. It's Cripps mission. Background इसकी थी, in the World War II, the Japanese forces were heading towards South Asia. The world war seemed to be going in Japanese favor. The preliminary success of Japanese encouraged the India National Congress. The movement against the government by Congress were troublesome for the Britishers. ये वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज जो थे वो हेडिंग टूवर्ड्स वो साउथ एशिया में वो दाखिल होना चाह रहे थे, और ये जो थी ये वॉर जो थी जापानीज के फेवर में थी. फिर द सक्सेस ऑफ जापानीज इनकरेज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. द मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय कांग्रेस वर ट्रबलसम फॉर द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि वो जो थे ये साउथ एशिया की तरफ आ रहे थे जापानीज. Congressists were confident that Japanese would hand over the power to the Indian after Britain's defeat. कांग्रेस वाले जो थे वो कॉन्फिडेंट थे कि जापानीज जो हैं वो क्या नाम है पावर्स इंडिया को दे देंगे ब्रिटिशर्स जब हारेंगे, ब्रिटिशर्स की हार के बाद. The Muslim had already been demanding a separate state of their own and had passed the resolution of 1940. मुसलमान जो थे उन्होंने ऑलरेडी अपना सेपरेट एक अलग वतन के लिए उन्होंने डिमांड कर दी थी और रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1940 में. To cope with this situation, the government of Great Britain sent Sir Stafford Cripps to find a suitable solution for the circumstances in the subcontinent. जिस सिचुएशन को ठीक करने के लिए ब्रिटेन ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक भेजा उनको, ताकि वो थोड़े सोल्यूशन उनको भेजा ताकि वो थोड़ा सब कॉन्टिनेंट में जाके थोड़ा सा अपने जो उनके प्रपोजल्स वगैरह हैं उनको बता सके. क्रिप्स मिशन अराइव्ड बट कुड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस. जब वो उनकी आमद हुई इंडिया में तो उन्होंने जो अपने प्रपोजल्स हैं उन्होंने उनको बताया, मगर कांग्रेस ने उसकी हिमायत नहीं की. क्रिप्स brought a few proposals for discussion with the major political forces in the subcontinent. अब क्रिप्स प्रपोजल्स देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स दिए. क्रिप्स announced his proposal on 29th March 1942 following are its main points. क्रिप्स प्रपोजल जो था 29 मार्च 1942 को उन्होंने ये प्रपोजल दिया और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. स्टेटस ऑफ डोमेन. द सब कॉन्टिनेंट विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमिनियन आफ्टर द वॉर. Independence of the Indians in all departments. All government departments will be handed over to Indian ministers including defense, foreign affairs and communications. उन्होंने कहा कि ये स्टेटस जो है सब कॉन्टिनेंट उसको एक डोमिनियन दे देंगे स्टेटस, किसके बाद, वॉर के बाद. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इंडियन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडियन के हैंड ओवर कर देंगे. उन्होंने उनको बताया मिनिस्ट्रीज उनको मिलेगी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स की और कम्युनिकेशन की. सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. अ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर्म टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन. A constituent assembly will be elected by the members of provincial assemblies. Rights of minorities. उन्होंने बोला कि अक़लियत का ख़ास ख्याल रखा जाएगा. Special steps will be taken to provide safeguard to the minorities. Provincial autonomy. After the formulation of constitution by the constituent assembly, it will be sent to the provinces. The provinces who do not endorse the constitution will be empowered to create a separate and free status for themselves. Reaction of the political parties का क्या reaction हुआ. मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म and all India Muslim League expressed thanks to Cripps and government for Great Britain for the promise to the Muslim majority provinces free and independent status. कायद-ए-आज़म ने इस क्रिप्स प्रपोजल का खुशामदीद उनको बोली और ब्रिटेन को उन्होंने बोला कि आपने ये अच्छा काम करें कि आप प्रोविंसेस के जो हैं पावर्स वगैरह वो उनको दे रहे हैं. The hint was a clear indication of the creation of Pakistan.
एक हिंट था आज़ाद पाकिस्तान के लिए। All India Muslims express thanks for the proposed step for the protection of minorities. All India Muslim League discussed the proposal in the meeting, and after long discussion, it decided not to approve the Cripps proposal as the demand of Pakistan was not accepted in the clear terms. All India Muslim League जो है वो proposal से खुश हुए, मगर उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक अलग मुल्क के लिए उन्होंने तहरीक शुरू कर दी थी, और पाकिस्तान वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक अलग उस पर उभर के रेशन आए, और जो थे क्रिप्स मिशन में ये चीज़ें वाजे नहीं की गई थी। कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, उन्होंने गांधी एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सोल्युटली रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको रिजेक्ट कर दिया। They ridiculed the proposal. A post-date check for a bank that is going to be bankrupted. The Congress criticized the right of veto given to the provinces. उन्होंने कहा कि आप इनको कैसे वीटो दे सकते हैं, प्रोविंसेस को कैसे आप खुद हुकूक दे सकते हैं कि वो अपने अलग वो बना सकें, उसमें अलग वो अपनी रियासत बना सकें। इट अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। उन्होंने पार्टीशन का आइडिया भी अपोज किया, मुखालफत की। इट एक्सप्रेस इट्स डिस्प्लेजर फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज़। उन्होंने बोला कि इसमें तो आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड इनको दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, उनको ज़्यादा आप वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस पर। कंक्लूजन इसमें क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर अमेरिकन प्रेशर प्रिपेयर्ड द क्रिप्स प्रपोजल्स. The government was not willing to agree to demand of Indian National Congress. On the other hand, Congress could not support the proposals when the Japanese were looking to be in strong position. The effort proved futile, but for Muslim point of view, it was a step towards partition. British government जो थे उन्होंने अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए मतलब ये उन्होंने कहा कि इंडिया कांग्रेस जो है उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, उन्होंने एग्री नहीं किया कांग्रेस के उस पर। और क्या हुआ, ये एक एफर्ट थी मुसलमानों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, और इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स पार्टीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।